اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ساتھیوں؟ حاضر ہوں آپ کا دوست راؤل اقبال سلطان فارکس اکیڈمی کے چینل سے۔ ساتھیوں، کافی دن کے بعد طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکا، تو آج ہفتے کا آغاز ہے تو میں نے سوچا دوستوں سے ملا جائے۔ سیٹ اپ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ہی بات کہ میں جو بھی انالیسس شیئر کرتا ہوں اس کا کسی کے نفع یا نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ میں اپنا انالیسس اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق شیئر کرتا ہوں، لہذا آپ میری اسٹریٹجی کو صرف اسی وقت فالو کیجئے گا جب آپ میری اسٹریٹجی سے ایگری کرتے ہیں، اور اگر آپ میری اسٹریٹجی سے ڈس ایگری کرتے ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ ضرور ڈالیے گا کہ میں کہاں مسٹیک کر رہا ہوں تاکہ میری بھی ٹریننگ ہو۔ چلتے ساتھیوں سیٹ اپ کی طرف۔ سب سے پہلے یورو یو ایس ڈی۔ ساتھیوں یورو یو ایس ڈی کو اگر میں ویکلی میں منتھلی میں دیکھتا ہوں، یہ دیکھیں ایک بہت زبردست قسم کی آبجیکٹس کلیئر کرنے پڑیں گے۔ ویکلی میں اگر میں دیکھتا ہوں، منتھلی میں، تو ایک بہت ہی بلشنس دکھائی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک ایسا ایریا ہے جو کہ سپورٹ سے ریزسٹنس سے ریجیکٹ ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کیئرفل ہونا ہے۔ پاسبل ہے کہ یہاں سے مارکیٹ ریٹیسٹ کر جائے۔ آگے چلتے ہیں ویکلی میں، تو ویک میں بھی دیکھیے ساتھیوں، آج کے ویک کی کینڈل پچھلے ویک سے اوپر کھلی ہے اور بظاہر یہ بلشنس دکھا رہی ہے۔ اسی طرح ڈیلی میں دیکھیں تو ڈیلی میں بھی مارکیٹ میں کچھ ایسا ہی معاملہ دکھایا ہے، لیکن اب یہ ایک ریزسٹنس پوائنٹ کے قریب آئی ہوئی ہے مارکیٹ۔ یہ جو ایریا ہے ساتھیوں، یہاں پہ ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ میں اور چھوٹے ٹائم فریم میں آتا ہوں تو یہ دیکھیے گا کہ اس ریزسٹنس پوائنٹ کے قریب مارکیٹ اپنا مومنٹم لوز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ میں اور چھوٹے ٹائم فریم میں آتا ہوں H1 میں، تو یہ دیکھیے گا ساتھیوں مارکیٹ نے یہ ہائی بنایا ہے اور اب یہ ایک لو بنایا ہے، لہذا یہاں سے میری کچھ ٹریڈ کا ڈیسیژن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ لو اور یہ ہائی۔ آئیے ساتھیوں اور چھوٹے ٹائم فریم میں چلتے ہیں، تو یہاں بھی کچھ ایسی سینیریو نظر آ رہا ہے۔ یہ چلتے ہیں ساتھیوں، یہ دیکھیے 15 منٹ کے ٹائم فریم میں، اب یہاں سے میری ٹریڈ بن سکتی ہے۔ تو مجھے جس بات کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مارکیٹ یہ کر کے اور پھر یہ کرتی ہوئی یہاں ایک ڈبل ٹاپ بناتی ہے اور پھر مارکیٹ اگر نیچے اترتی ہے اور اس پوائنٹ کو بریک کرتی ہے تو پاسبلٹی نظر آ رہی ہے کہ مارکیٹ سیل میں جا سکتی ہے، لیکن اگر مارکیٹ اس ٹاپ کو بریک کرتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے ایک اچھے ٹائم کے لیے مارکیٹ بائی میں چلی جائے۔ لہذا مجھے جو نظر آ رہا ہے، اگر مارکیٹ سیل کی طرف آتی ہے تو کم از کم مجھے آج کے لیے مارکیٹ اس پوائنٹ کو ٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لہذا میرا جو ٹریڈ بنے گی وہ بنے گی 1.21 کو اگر مارکیٹ بریک کرتی ہے تو میری ٹریڈ بنے گی، اور 1.2120 پہ میرا سٹاپ لاس 20 پپس کا۔ اور میرا آج کے لیے ٹارگٹ 1 جو ہے وہ پہلے یہ پوائنٹ اور اس کے بعد یہ پوائنٹ 1.2070 تک مارکیٹ، کیونکہ یورو یو ایس ڈی میں اتنی خاص موومنٹ نہیں ہوتی، یہ تھوڑا سیف اور سلو پیئر ہے، تو یہ مجھے کوئی یہاں سے 30 پپس مارکیٹ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں ساتھیوں، جی بی پی یو ایس ڈی کو دیکھتے ہیں۔
साथियों जीबीपी यूएसडी को भी कुछ मार्केट ये देखिएगा कि ये जो बुलिशनेस दिखाई थी, बेरिशनेस दिखाई थी मार्केट में, मैं वीकली में अगर देखता हूं तो ये देखिए पिछले वीक में मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई और अभी कैंडल के अंदर कैंडल है, लिहाजा अभी भी कुछ सिनेरियो मुझे नजर नहीं आ रहा जीबीपी यूएसडी का जिसपे हम फैसला ले सके। मंथली में अगर मैं देखता हूं तो ये देखिएगा साथियों, ये पॉइंट और ये पॉइंट कुछ सेम प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां से मार्केट रिजेक्ट हुई थी। तो अब मुझे जो ट्रेड लेनी है, अगर मैं H4 को देखता हूं तो ये देखिएगा साथियों, यहां से मार्केट एक ब्रोकन रेजिस्टेंस जो है उस तक पहुंची हुई है और अब मेरा जो फैसला होना है वो इसके नीचे अगर मार्केट आती है तो सेल, और अगर इससे ऊपर निकलती है तो फिर अभी मैं मार्केट को बाय देख रहा हूं, लेकिन मुझे ज्यादा चांसेस मार्केट के नीचे गिरने के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसी पॉइंट को आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये एक मजबूत रेजिस्टेंस पॉइंट मुझे नजर आ रहा है। लिहाजा मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं, 15 मिनट में। आज के लिए जो मुझे सोच सिनेरियो नजर आ रहा है तो मुझे ये 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये देखिएगा साथियों, ये इस एरिया को अगर मैं देखता हूं, जैसा कि मार्केट ने यहां से एक दफा रिजेक्शन दिखाई है और अब फिर दोबारा मार्केट ये डबल टॉप क्रिएट कर चुकी है, ये वाला डबल टॉप जो है मार्केट क्रिएट कर चुकी है। तो अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो फिर मेरी मार्केट सेल में जाएगी, और अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके और फिर एक दफा यूं होके यूं ऊपर जाती है तो फिर आप बाय की ट्रेड देखेंगे। लेकिन बेहतर यह है कि अगर मार्केट बाय में जाती है तो बाय से अवॉइड करें और सेल की ट्रेड का इंतजार करें। आज हफ्ते का पहला दिन है तो हफ्ते की कैंडल पता नहीं किस तरह खुले। बहरहाल फिलहाल मुझे जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो ये, और यहाँ पे एक और ट्रिपल टॉप मार्केट बना सकती है और फिर यहां से मार्केट नीचे आ सकती है। तो जब तक मार्केट 1.3890 को ब्रेक नहीं करती हमें कोई फैसला नहीं लेना, और जब तक मार्केट 1.3910 को ब्रेक नहीं करती तो हमें तब भी कोई फैसला नहीं लेना। लेकिन अगर मार्केट बाय में जाए तो बेहतर यह है कि बाय की ट्रेड से अवॉइड किया जाए। और अब मुझे मार्केट कुछ ऐसा करते हुए दिखाई दे रही है जो कि तकरीबन 1.3840 वो भी मार्केट ब्रेक कर सकती है। आगे चलते हैं साथियों, AUD USD, ये देखिएगा साथियों, AUD USD को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूं तो ये वीकली में पिछले वीक में एक इंडिशियन कैंडल बनी और अब ये वीक कुछ बुलिशनेस में दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं डेली में जाता हूं तो डेली में आप ये देखिएगा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट पे आई हुई है। ये जो पॉइंट है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अब मुझे इंतजार करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करती है या मार्केट यहां से रिजेक्ट होती है। लिहाजा और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आते हैं तो ये देखिएगा, ये जो बेरिशनेस दिखाई थी फिर ये कुछ ऐसा किया और अब मुझे मार्केट कुछ ये प्रैक्टिस ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रही है। तो हमें दोनों सिनेरियोज का इंतजार करना है। अगर मार्केट यहां निकलती है यहां, तो ये भी पॉसिबल है कि यहां कहीं आके डबल टॉप बनाए और फिर गिर जाए। लिहाजा अगर मार्केट बाय में जाती है तो आज के लिए कम से कम आपने इंतजार करना है, तो कल इसका सही फैसला हो सकेगा। लेकिन अगर मार्केट सेल में आती है, जैसा कि ये देखिएगा
ये जो मार्केट ने इशारा दिया है, ये देखिए यहां पे मार्केट ने कुछ ऐसी मुझे सूरत हाल दिखाई है, और अब मुझे ये 2 पॉइंट्स जो है इनका इंतजार करना है। यूं हो के मार्केट कुछ यूं कर सकती है और फिर ये नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा आज के लिए AUD USD 0.77 लकी फिगर बन रहा है। 77 के स्टॉप लॉस के साथ आप 77.50 से मार्केट को सेल करेंगे। 0.7750 से मार्केट को सेल करेंगे, और अगर मार्केट बाय में जाती है तो इसको आज के लिए आप अवॉइड करेंगे, इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं साथियों, NZD USD को देखते हैं। ये देखिएगा साथियों, NZD USD ने भी सेम सिनेरियो वीकली में अगर मैं देखता हूं तो ये जो बेरिशनेस दिखाई थी, अब ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट आई हुई है। ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इस पे मार्केट आई हुई है, और यहां से मुझे कुछ हल्की सी रिजेक्शन नजर आ रही है। अगर मैं डेली में देखता हूं तो ये जो पिन बार बनाई है, और अब ये देखिए इनसाइड बार, आउटसाइड बार, इनसाइड बार, आउटसाइड बार। H4 में अगर मैं देखता हूं तो ये देखिएगा ये सूरत हाल इस वक्त मार्केट की नजर आ रही है। यहां से मुझे रिजेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है, और ये H1 में अगर मैं देखता हूं तो ये देखिए एक अच्छी खासी रिजेक्शन मार्केट में शो कर दी है। लेकिन मैं चूंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को प्रेफर करता हूं ट्रेड के लिए, लिहाजा ये जो सूरत हाल है, यहां से अगर मार्केट यूं करके और फिर वापस बुलिशनेस दिखाती है लगभग यहां तक, और फिर मार्केट नीचे अगर गिरती है तो फिर आपकी सेल की ट्रेड इंशाल्लाह ताला कंफर्म हो जाएगी। लेकिन अगर बाय में जाती है और इस टॉप को ब्रेक करती है तो फिर आपने अवॉइड करना है। लिहाजा बेहतर यह है कि इस पे सेल की ट्रेड का इंतजार करें, और अगर मार्केट ऐसे ही नीचे उतर जाती है यूं करती फिर यूं करती है तो फिर मार्केट नीचे आए तो आप पूरा 72-30 के करीब जब मार्केट आ जाए तो आप अलर्ट हो जाए। 0.7230 और स्टॉप लॉस 0.72 पूरा 72, काफी जाता हूं, 0.72 अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आप सेल में जाएंगे, और 0.7220 के करीब आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, और उसके बाद ट्रेड को आप ओपन रखेंगे। पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि पूरा हफ्ता हो सकता है ये यूएसडी के पेयर अब सेल में जाए। लेकिन अगर मार्केट बाय की तरफ जाती है तो फिर अवॉइड करना है और सेल के ट्रेड का इंतजार करना है। अगर कोई सिनेरियो चेंज हुआ तो इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में इसका मजीद हमें करेंगे कुछ। ये देखिएगा साथियों, यूएसडी जेपीवाई को अगर मैं देखता हूं तो ये जो बुलिशनेस मार्केट में दिखाई है तो ये बजाहिर मुझे कुछ रिजेक्शन सी नजर आ रही है। वीकली में अगर मैं देखता हूं तो ये देखिएगा एक लगातार, वीकली में 3 ब्लैक क्लोज बनाए हुए हैं, मार्केट स्ट्रॉन्ग बेरिशनेस में है। बट डेली में अगर मैं देखता हूं तो यहां कुछ मुझे कमजोर सा मोमेंटम नजर आ रहा है, और ये जो प्राइस एक्शन है इसको मार्केट कुछ कंसीडर करती हुई नजर आ रही है यहां से, और यहां तक। तो सूरत हाल यूएसडी जेपीवाई पे बजाहिर अभी क्लियर नहीं है। अब देखना हमने ये है कि ये जो मार्केट ने प्राइस एक्शन दिखाया है बाय का, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर ये बाय में जाएगी, और अगर मार्केट इसको नीचे ब्रेक करती है तो फिर हम सेल की तरफ आएंगे। यूएसडी जेप इसको यूं देखें तो बजाहिर मुझे
मार्केट कुछ बाय की ट्रेड इसमें होती हुई दिखाई दे रही है। ये अगर मैं कैंडल ये जो सिनेरियो है इसको जो मार्केट ने अब ब्रेक किया है, तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से कुछ ऐसा कर सकती है। लिहाजा आपने ये जो पॉइंट है 107.65 या सेफर स्टॉप लॉस अगर नीचे आती है तो फिर इस पॉइंट तक आपने इंतजार करना है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहां कहीं से यूं होके फिर यूं हो और यूं होके मार्केट फिर ऊपर निकल जाए। लेकिन यूएसडी जेपीवाई पे आज के लिए आपने सेल की ट्रेड से अवॉइड करना है और बाय की ट्रेड तलाश करनी है। लिहाजा इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है जो कि 107.90 के करीब है, 107.90 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मेरी बाय की ट्रेड बन जाएगी और 107.60 के स्टॉप लॉस के साथ मैं मार्केट को बाय करूंगा और फिर ये मुझे एक कम से कम इस हफ्ते में मार्केट बाय होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी कल की वीडियो में जब हम आएंगे देखेंगे कि कल क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन फिलहाल चूंकि आज हफ्ते का पहला दिन है, हफ्ते के पहले दिन सेटअप्स कुछ मशकूक होते हैं, लिहाजा एहतियात से ट्रेड कीजिएगा। यूएसडी कैड पे आते हैं साथियों। ये देखिएगा साथियों, यूएसडी कैड ने ये बुलिशनेस दिखा दी हुई है। अगर मैं H4 में आता हूं तो यहां पे आप देखिए कि मार्केट ने ये जो सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की थी, अब देखना ये है कि ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है या ये फेक आउट होता है। ज्यादा बजाहिर तो मुझे ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल उठती हुई दिखाई दी है और अब मैं यहां से अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं तो ये देखिएगा साथियों, ये एक एक्सेलरेशन एंड डेसेलरेशन का मुझे कुछ सिनेरियो नजर आया है। इसमें मैं इसको कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो मार्केट ने एक्सेलरेशन की थी यहां पे और फिर ये सिनेरियो बना के ये बनाया और अब मार्केट मुझे कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो फिर 1.2470 1.2470 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मैं यहां से बाय करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस 1.2440 पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और आज के लिए मेरा टारगेट ये पॉइंट इस पॉइंट के करीब आके तो तकरीबन 2490 2480 या 1.25 तक मार्केट जा सकती है। आगे चलते हैं साथियों, यूएसडी सीएचएफ। ये देखिएगा साथियों, यूएसडी सीएचएफ ने भी कुछ बुलिशनेस दिखा दी हुई है और अब यहां से जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है, ये जो मार्केट ने सेटअप बनाया है, ये देखिए यहां से एक्सेलरेट करके मार्केट ये जो पॉइंट है यहां से ये करके और अब मुझे मार्केट कुछ यूं करके और यूं करती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा यूएसडी सीएचएफ पे आप सेल की ट्रेड से अवॉइड करेंगे और बाय की ट्रेड ढूंढेंगे। अगर मार्केट नीचे आती है तो सेल से अवॉइड करना है। ये भी पॉसिबल है कि मार्केट यहां तक आए और फिर ऊपर उठ जाए। तो आज के लिए मेरा सेफर स्टॉप लॉस 0.9120 0.20 और मेरा एंट्री पॉइंट 0.9130 और मेरा टारगेट आज के लिए ये पॉइंट कोई तकरीबन 9160
ये USD CHF का सिनेरियो फिलहाल नजर आ रहा है। आइए साथियों गोल्ड की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा साथियों गोल्ड ने ये जो बेरिशनेस दिखाई, अब मार्केट ये देखिए ये कुछ ऐसा कर रही है, और अब यहां से मुझे अगर मैं H4 के टाइम फ्रेम में देखता हूं तो ये देखिएगा इस बेरिशनेस के बाद अब मार्केट मुझे कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट मेरे डिसीजन पॉइंट होंगे। मैं M15 में आता हूं, ये देखिएगा साथियों इस वक्त मुझे जो सूरत हाल नजर आ रही है गोल्ड में, वो कुछ यूं हो सकता है कि मार्केट यहां से कुछ ऐसा करे और यहां कुछ यूं करती हुई और फिर मार्केट नीचे गिर जाए। तो 1784 के स्टॉप लॉस के साथ, इसको थोड़ा और सेव कर ले, 1786 के स्टॉप लॉस के साथ जब मार्केट यहां से कुछ इस पॉइंट पे आए, क्योंकि तो तकरीबन 1780 के करीब आ रहा है, 1780 से मार्केट जब एक दफा फिर रिटेस्ट करके नीचे गिरेगी तो मैं इस पे सेल की ट्रेड लूंगा। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती हुई यूं करके फिर यूं करती है और फिर नीचे गिर जाती है तो फिर मैं यहीं से सेल की ट्रेड लूंगा, लेकिन मेरा सेफर स्टॉप लॉस 1786 रहेगा और मेरा टारगेट बड़ा पॉइंट देखता हूं तो कम अज कम मुझे ये जो पॉइंट है 1750 तक के लिए मैं गोल्ड को सेल कर सकता हूं। 1786 का स्टॉप लॉस और 1750 का टारगेट। BTC देखिए साथियों मैं आपको कहता रहा काफी अरसे तक कि इसको बाय नहीं करना, और अब देखें BTC ने क्या किया है कि एक 65,000 का टॉप मार के मार्केट में जो है नीचे गिरने की हुए दिखाया है। और अब मेरे ये जो 2 पॉइंट है, ये डिसीजन पॉइंट, ये देखिएगा यहां से और यहां से। आइए H4 में चलते हैं। ये देखिए ये अभी ये बुलिशनेस थोड़ी सी आई है, तो पॉसिबल है कि BTC को छोटे टाइम फ्रेम में एनालाइज करना आसान नहीं है। हाँ यहीं से कुछ, ये देखिए आज गैप के साथ मार्केट खुली है और अब ये गैप भी इसने पुल कर लिया है, लिहाजा हाँ इस पॉइंट का इंतजार कीजिए। ये 54,500 के करीब मार्केट जाके और BTC फिर नीचे गिर सकता है और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 55,200 के स्टॉप लॉस के साथ मैं BTC को सेल देख रहा हूं। ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसका अगर मैं टारगेट देखता हूं तो अब साथियों इसका नेक्स्ट टारगेट मुझे, अगर ये सेटअप ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट तकरीबन 25,000 तक BTC मुझे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई है तो पॉसिबल ही है कि ये यहां तक कहीं टेस्ट होके और फिर गिर जाए। लिहाजा BTC को बाय करने की गलती न कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसके सेल की ट्रेड हो जाए। US ऑयल पे चलते हैं साथियों। ये देखिएगा साथियों ये जो मैंने आपको बताया था 64 का स्टॉप लॉस अभी तक हिट नहीं हुआ है और अब फिर मार्केट ये देखिएगा 63-76 तक आई है और अब फिर वही सूरत हाल नजर आ रही है। तो इसमें मुझे कुछ ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करती है तो ये कुछ यूं करके यूं करे और फिर ये न्यू क्रैश करेगी और मार्केट 51 या 50 तक मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा US ऑयल पे इंतजार कीजिएगा इस ब्रेक 60 के ब्रेकआउट के बाद 65 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड को अपना ऑयल को सेल करेंगे और 50 तक का मुझे
फिलहाल ये लॉन्ग टर्म की ट्रेड है, इस पे एहतियात से इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। साथियों, ये था आज का एनालिसिस। अगर मेरी बात अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को बताएं ताकि औरों का भी भला हो। और अगर मेरी बात पे कोई कम नजर आए तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में गाइड कीजिएगा। मुझे आपकी राय का एहतराम रहेगा और मैं अपने समझ बूझ के मुताबिक आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला आप लोगों